ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی پھر ہمارے اسی سلسلہ وار اہم موضوعات کی کڑی کے طور پر ایک اور موضوع میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ موضوع ہے ترکیہ میں ایردوغان کی بڑی تاریخی شکست۔ بلدیہ کے انتخابات کو آپ جو ترکی میں ہوتے ہیں اس کو آپ ہلکے میں نہ لیں، جو اس وقت ایردوغان ہارے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر اسمبلی انتخابات نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے عام انتخابات کے بعد، صدارتی انتخابات کے بعد کوئی اہم ترین موڑ وہاں پر ہوتا ہے ترکیہ میں، تو وہ بلدیہ انتخابات ہے، جس میں اس وقت ایردوغان بری طرح سے ان کی پارٹی ہار چکی ہے۔ اس سلسلے میں جن کی مقبولیت بہت زیادہ تھی، جن کی شہرت بہت زیادہ تھی، ابھی کچھ مہینے پہلے یا کچھ جنہوں نے جیت درج کی تھی تاریخی اعتبار سے، وہ کس طرح اس طرح اچانک شکست کے حامل ہو سکتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس پر افتخار گیلانی صاحب نے بہتر انداز میں تبصرہ کرنے کی کوشش کی ہے، جو مشہور صحافی بھی ہیں اور ترکی میں رہتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ گزشتہ 31 مارچ کو موسم بہار کی سورج کی خوشگوار تپش کا مزہ لیتے ہوئے ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ کے ایک پولنگ بوتھ کے باہر قطار میں کھڑے ایک ریٹائرڈ بزرگ مراد اوکتائے بتا رہے تھے کہ انہوں نے 2001 سے لے کر اب تک تقریباً 18 بار صدر رجب طیب اردوغان کی قیادت میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی یعنی آق پارٹی کو وفاداری کے ساتھ ووٹ دیے ہیں، مگر اس بار ان کا ارادہ کچھ اور ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ووکتے بے کی آواز پورے ترکیہ کی آواز بن کر رات کو ووٹوں کی گنتی کے وقت ایک ایسا ارتعاش پیدا کرے گی جو شاید ملک کی ایک نئی سمت اور لیڈرشپ کا تعین کرے گی۔ انقرہ میں وزارت اطلاعات کے قائم کردہ پریس روم میں جب رات گئے نتائج آنا شروع ہو گئے تھے تو تمام تر انتخابی جائزوں کے برعکس وہ اقتدار پر ایردوغان کی دیرینہ گرفت کے کمزور ہونے کا اشارہ کر رہے تھے۔ ویسے تو دنیا میں کہیں بھی بلدیاتی انتخابات میں دلچسپی کا کوئی خاص عنصر نہیں ہوتا، مگر ترکیہ میں جہاں ریاستی انتخابات نہیں ہوتے ہیں، یہ صدر اور پارلیمنٹ کے بعد جمہوری نظام کا اہم ترین ستون ہے۔ اس لیے سیاسی اہمیت کے لحاظ سے استنبول شہر کے میئر کا موازنہ ہندوستان کی اتر پردیش یا پاکستان کے پنجاب صوبوں کے وزرائے اعلیٰ سے کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اکثر وزراء شہروں کے میئر بننے پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس بلدیاتی نظام میں مقامی مختار یعنی کونسلر، سٹی کونسل یا شہری پارلیمنٹ کے ممبران، ضلعی میئر اور پھر شہر کے میئر براہ راست منتخب ہوتے ہیں، یعنی ایک ووٹر کو بیک وقت 4 ووٹ دینے ہوتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں بھی اسی طرح کا نظم ہوتا ہے۔ یہ ادارے مقامی ٹیکسوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور ٹرانسپورٹ، زمین کا استعمال، فضلہ جمع کرنے، پانی، گیس اور پارس اور سڑکوں اور دیگر تفریحی سہولیات جیسی خدمات کی ذمہ دار ہیں، اور مختار کا اپنے علاقے میں خاصا اثر و رسوخ ہوتا ہے اور اس کا باضابطہ دفتر اور عملہ ہوتا ہے۔ خیر، ان بلدیاتی انتخابات میں صدر ایردوغان کی آق پارٹی کو چونکا دینے والی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے حریف ترکیہ کے بانی مصطفیٰ کمال اتاترک کی قائم کردہ سیکولر ریپبلکن پیپلز پارٹی یعنی CHP نے بلدیاتی انتخابات میں تمام اہم شہری علاقوں پر قبضہ جما لیا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بس سال بھر قبل صدارتی انتخابات کے وقت تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ CHP کو محض 22% ووٹ لے کر ہی اکتفا کرنا پڑا تھا،
मगर इस बार उसने 37.74% वोट लेकर 14 मेट्रोपॉलिटन शहरों, 21 सूबों और 337 जिली काउंसिलों पर फतह के झंडे गाड़ दिए। इसके दो बड़े लीडरान अकरम इमाम ओलो 51.1% वोटों के साथ दोबारा इस्तांबुल के मेयर के तौर पर मुंतखब हुए हैं। दारुल हुकूमत अंकारा में भी उसके उम्मीदवार और मौजूदा मेयर मंसूर यावास ने 60.4% वोट हासिल करके दोबारा ओहदा हासिल किया है। पिछले साल सीएचपी कई पार्टियों के साथ मिलकर मिली इत्तेहाद के जेर साया एर्दोगान के खिलाफ सदारती इंतखाबात लड़ रही थी, मगर ये इत्तेहाद उसकी हार के बाद पारा पारा हो गया था। सीएचपी में भी लीडरशिप की जंग शुरू हो गई थी और उसके सदर कमाल किलेचदार ओलो को इस्तीफा देकर ओहदा ओजगोल ओजाल के लिए खाली करना पड़ा। ये बल्दियाती इंतखाब इस पार्टी ने अपने बलबोते पर लड़ा। इसके लीडरों ने ना इंतखाबी पंडितों को उम्मीद थी कि वो इजाफी 15% वोट लेने में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप तुर्किया के नक्शे पर नजर डालें तो ये 4 खित्तों में बटा हुआ है। बहरे रूम के साहिल से लगा हुआ अकादांस खित्ता, थ्रेस या ट्रेकिया खित्ता जिसमें इस्तांबुल, गेलीपोली, याचना काले के इलाके आते हैं, बहरे अस्वद के साहिल पर आबादकार अदांस खित्ता और फिर अनातोलिया या एशियाई कूचक का इलाका जिसमें अंकारा समेत शाम और इराक की सरहद तक के तुर्किया के मशरिकी इलाके शामिल हैं। सीएचपी पिछली 4 दहाइयों से सिर्फ कारादांस इलाका तक महदूद होकर रह गई थी, मगर इस बार उसने वस्ती अनातोलिया के वसी और अरीज इलाकों को फतह कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि मशरक़ी अनातोलिया के जिन इलाकों में पिछले साल ज़लज़ले ने तबाही मचा दी थी और जहां लोग अभी भी खीमों और कंटेनरों में आबाद हैं, आख पार्टी ने कामयाबी हासिल कर ली, जिससे यही लगता है कि मुतासिरा लोग हुकूमत की बाज़ाबादकारी के अमल से मुतमईन हैं। राय आम्मा के जायजे बता रहे थे कि आख पार्टी को इन्हीं इलाकों से नुकसान होने का अंदेशा है, मगर इस इलाके और बहरे अस्वद के साहिली इलाके, कारादांस और देही इलाकों में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए हुक्मरान आख पार्टी किसी हद तक वक़ार बचाने में कामयाब हो गई, जिसकी वजह से उसने 35.49% वोट हासिल करने में कामयाब हुई। 2019 के बल्दियाती इंतखाबात में आख पार्टी ने 42.87% वोट हासिल किए थे। थ्रेस जिसमें इस्तांबुल और उसके मुत्तसिल इलाके आते हैं और कारादांस जिसमें अजमीर, अंतालिया जैसे खूबसूरत शहर आते हैं, तुर्किया की अशराफिया के मस्कन हैं। इन इलाकों के बासी अनातोलिया और कारादांस को हिकारत की नज़र से देखते थे। ये इलाके 2 दहाई कबल तक खासे पसमानदा होते थे। एर्दोगान की आख पार्टी का सबसे बड़ा कारनामा यह था कि तरक्की और बुनियादी ढांचे के लिहाज से उसने इन इलाकों को अशराफिया के इलाकों के मुकाबिल खड़ा कर दिया। इन इलाकों का दौरा करते हुए लगता ही नहीं कि किसी भी इशारे में इस्तांबुल या अजमीर से कम है। यही एक अहम वजह है कि पिछले 2 दहाइयों से एर्दोगान एक के बाद दीगर इंतखाबात जीत रहे थे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, माहिरीन का कहना है कि मुसलसल अपोजिशन में रहने की वजह से सीएचपी में भी बड़ी तब्दीलियां रोनुमा हुई। ये पार्टी अब किसी भी तरह कमाल अतातुर्क या उनके दस्ते रास्त असमत अनोनों के सख्तगीर सेकुलरिज्म या बाएं बाजू के नज़रियात पर यकीन नहीं रखती। अब ये एक तरह की सेंटर सेट पार्टी बन गई है जिसमें सभी नज़रियात को पनाह मिलती है। फिलहाल उसके दोनों फिलवक्त में बड़े लीडर इस्तांबुल के मेयर इकराम इमाम ओलो और अंकारा के मेयर मंसूर यावाश दाएं बाजू के नज़रियात के हामिल रहे हैं। मौजूदा इंतखाबी मुहिम के दौरान मंसूर यावाश को अंकारा की किसी न किसी मस्जिद में नमाजियों से मिलते हुए उनको वोट देने की याद दहानी करते हुए देखा जा सकता है। मैं जिस मस्जिद में तरावी अदा करने जाता हूँ, इंतखाबात से हफ्ते भर कबल वहाँ एक रात नमाजियों की चाय से तवाज़ु कर रहे थे। इससे कबल वो अगली सफ में नमाज इशा और तरावी अदा कर रहे थे। नताइज के ऐलान के बाद इस्तांबुल में फतह का जश्न मना रहे अपने हामियों से खिताब करते हुए इकराम इमाम ओलो ने कहा कि उन्होंने तुर्किया में आमिराना निज़ाम और पावर स्ट्रक्चर को एक शख्स तक मरकूज रखने की रिवायत को चैलेंज किया है। उनका इशारा वाज़े तौर पर एर्दोगान की तरफ था, जो पिछली 2 दहाइयों से तुर्किया में ताकत का महवर बने हुए हैं। हत्ता कि उनकी पार्टी में भी उनकी सियासी कद की वजह से अभी तक उनकी जानशीन का तयन नहीं हो सका। गो के वो ऐलान कर चुके हैं कि ये उनका आखिरी इंतखाब था। इमाम ओलो का कहना था कि तुर्किया में जमहूरियत का अहया हो रहा है और शख्सी निज़ाम का खात्मा हो रहा है।
एर्दोगान जो वजीर आजम बनने से कबल इस्तांबुल के मेयर थे कि लिए शहर को हासिल करना एक वकार का मसला बना हुआ था, उस शहर को वापस लेने के लिए पुरअज़्म थे। ये शहर तुर्किया की मजमूई GDP का 30.4% हिस्सा फराहम करता है। तकरीबन 25 साल तक ये आक पार्टी के ज़ेर असर रहा। 2019 में एक सख्त मुकाबले के बाद CHP के इमामोलों ने शहर आक पार्टी से छीन लिया था। ताज़ा तरीन इंतखाबात में आक पार्टी इस्तांबुल के 10 अजला में पिछड़ गई। हत्ता कि इस्तांबुल के बेगलो ज़िला जहाँ एर्दोगान पैदा हुए हैं वहाँ भी CHP को सबकत हासिल हुई है, यानी हर जगह एर्दोगान को हार हुई है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये लंबी तफसीलात हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसी बात को सामने रखा है कि जिस तरह से तुर्किया में महंगाई बढ़ गई है, वहीं पर जो है इस वक्त गाज़ा के मजलूम मुसलमानों का सपोर्ट ना करने की वजह से जो है इस वक्त एर्दोगान की पूरी तरह से जो है यहाँ पर उनकी मकबूलियत में भी, उनकी शोहरत में भी लगातार कमी आती जा रही है। महंगाई बढ़ गई थी तो इसका कोई असर वहाँ के अवाम पर नहीं पड़ रहा था और इसको बर्दाश्त करते हुए चले जा रहे थे, लेकिन इस मर्तबा गज़ा के पट्टी पर जो हमले हुए और शुरू में एर्दोगान के जो बयानात आए, फिर उसके बाद अक्सर उनकी खामोशी जो छा गई और उसके बाद जिस तरह से अवाम सड़कों पर निकल आए एहतजाज करते हुए हुकूमत के ख़िलाफ़ कि वो सपोर्ट करे गज़ा पट्टी को, ऐसी सूरत हाल में जो एहसासात एर्दोगान को लेकर के आम अवाम में मौजूद थी कि वो एक इस्लाम पसंद रहनुमा थे, वो एक आदिल रहनुमा थे, मजलूमों के तई पूरी दुनिया में आवाज़ उठाने वाले पहले मुस्लिम रहनुमा थे, वो सब ख़त्म हो गया पल भर में और उसका नतीजा फौरी तौर पर सामने निकल करके भी आया। माहिरीन का कहना है कि उनकी शिकस्त में माशी पॉलिसियों, होशरुबा महंगाई, अफरात ज़र से निमटने में नाकामी का एक अहम उन्सुर रही। 4 साल कबल पानी का एक कैन जो 14 लीरा में मिलता था अब 100 लीरा तक पहुंच गया है। एक औसत दर्जे के फ्लैट का किराया जो 1000 लीरा के अंदर होता था 10,000 से तजावुज़ कर गया है। 2019 में जहां $1 4 लीरा का होता था, अब ये 30 लीरा से तजावुज़ कर गया है। इंतखाबात से पहले एर्दोगान ने महंगाई के मसाइल से निमटने के लिए कम अज़ कम आमदनी और मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा करने का ऐलान किया, मगर इसमें रिटायर्ड अफराद और उनकी पेंशन शामिल नहीं थी, जिसका मुअम्मर अफराद ने खासा बुरा मनाया और उनकी पार्टी को सबक सिखाने पर कमर बस्ता हो गए। मालूम होना चाहिए कि मुल्क में तकरीबन 15 मिलियन अफराद पेंशन पर गुजारा करते हैं इस वक्त, हुकूमत से जो चीज़ मिलती है। सियासी मुबस्सिर महमद ओस्तुर के मुताबिक अगर ज़िंदगी गुजारने के लिए रोज़मर्रा की चीज़ों की बढ़ती हुई कीमतें नौजवान वोटरों का मौजू था, बुजुर्गों के लिए पेंशन में इजाफा ना करना एर्दोगान को खासा भारी पड़ गया। और उनका कहना है कि आक पार्टी के लीडरों में मुसलसल पावर में रहने की वजह से तकब्बुर आ गया था, जिससे उनके अपने वर्कर भी नाराज़ थे। उनका कहना था कि गो कि इंतखाबात में 78% वोटरों ने हिस्सा लिया, मगर 1 मिलियन वोट अनवेल्ड भी करार दिए गए। उनका कहना है कि इनमें अक्सर वोट आक पार्टी के वर्करों के थे जो उन्होंने जानबूझकर अनवेल्ड कर दिए। दूसरी तरफ नौजवान वोटर भी आक पार्टी से ऊब चुका है और तब्दीली का ख्वाहां है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस्तांबुल के मेयर के इंतखाबात के लिए बल्दिया इंतखाबात को लेकर के जिस तरह से हंगामा आराई होनी चाहिए थी मकामी सतह पर हुई, लेकिन आलमी सतह पर तुर्की के छोटे से छोटे इलेक्शन को लेकर के इंटरेस्ट देखा जाता था। लेकिन एर्दोगान की मकबूलियत में गिरावट का ऐसा असर हुआ कि यहाँ के इंतखाबात हो भी गए, नताइज सामने आ भी गई, लेकिन न दुनिया ने बोला, न तुमने बोला, न हमने बोला। ये मंजर यहाँ देखने को मिला। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।